السلام علیکم. گڈ آفٹر نون. کون کون پریزنٹ ہے؟ خوش نصیبہ بیٹا جی میری آواز آ رہی ہے؟ جو اسٹوڈنٹ آن لائن ہے پلیز بتائیے گا میری آواز آ رہی ہے. ایم آئی آڈیبل ٹو یو؟ آواز آ رہی ہے بیٹا جی میری؟ بتائیے گا. اور کلیئر ہے آواز؟ ہیلو اسٹوڈنٹس، آواز آ رہی ہے میری؟ ابھی تک صرف 5 اسٹوڈنٹس کیوں ہیں؟ کافی ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی تک اتنے کم اسٹوڈنٹ ہیں بیٹا جی. جلدی جلدی سے کمیونیکیٹ کریں باقی اسٹوڈنٹس کو بھی کہ وہ جوائن کر لیں تاکہ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں. اور پلیز مجھے میرے پاس کوئی شو نہیں ہو رہا، مجھے بتائیے آپ لوگ آن لائن ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پلیز مجھے اپنی پریزنس شو کریں. اوکے تھینک یو خوش نصیبہ. اوکے بیٹا جی، آئی تھنک کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے. جسٹ 5 اسٹوڈنٹس آر ہیئر، مزید ویٹ تو نہیں کر سکتے. جو ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر. آ جائیں آپ لوگ، 2 سے 3 منٹ اور دیکھ لیتی ہوں میں
جلدی سے آ جائیے پلیز. وعلیکم السلام ماریہ. اوکے تھینک یو خوش نصیبہ. ویسے تو تمام اسٹوڈنٹ کو خود ٹائم پہ آنا چاہیے. دے آل نو کہ کلاس کا ٹائم ہے. جو اسٹوڈنٹ آئے ہوتے ہیں ان کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. بہت بری بات ہے. اچھا جی, ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کے پرنسپلز اسٹارٹ کیے تھے نا آئی تھنک. ہاں, پرائمری ہیلتھ کیئر ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں پرائمری ہیلتھ کیئر کے ایلیمنٹس ہم نے پڑھے تھے. اب ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر کے پرنسپلز اسٹارٹ کیے تھے. پرنسپلز میں جو تھوڑا سا ریویو لے لیتے ہیں کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے پرنسپلز جس طرح سے ہم نے 8 ایلیمنٹس پہلے مینشن کیے تھے, اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جو وہ 8 ایلیمنٹس ہیں ان کو ظاہر ہے آرگنائز کس طرح سے کرنا ہے, ڈیلیور کس طرح سے کرنا ہے, وہ کس چیز پہ بیس کر رہا ہوگا. وہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے پرنسپلز کے اوپر بیس کر رہا ہوگا. وہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے جو پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں. ایکویٹی ان ڈسٹریبیوشن تھا, اپروپرائٹ ٹیکنالوجی تھا, ملٹی سیکٹوریل اپروچ تھا, کمیونٹی پارٹیسپیشن سے. تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کا اوور ویو دیا تھا اور ایکویٹی ان ڈسٹریبیوشن کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا. باقی تمام پرنسپلس کو بھی ہم ابھی ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اور ایکویٹی ان ڈسٹریبیوشنس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ایکویٹی ان ڈسٹریبیوشن ہمیں سمجھ آ رہا ہے. ایکویٹی کا مطلب تھا اکارڈنگ ٹو نیڈ, یعنی دس از ناٹ اباؤٹ ایکویلٹی, دس از اباؤٹ نیڈ. جس کی جہاں نیڈ ہے, جتنی نیڈ ہے اس سے اتنی. ہیلتھ سروسز کی اگر بات کریں تو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرنے, لیکن میں نے جیسے پہلے آپ کو کلیئر کیا کہ تمام ایلیمنٹس دے آر ڈیپینڈنٹ آن پرنسپلس فار دیئر ایگزیکیوشن. تو تمام چیزیں صرف اور صرف ہیلتھ سروسز نہیں, ہیلتھ ایجوکیشن ہے, فوڈ واٹر سپلائی ہے, سینیٹیشن کی سروسز ہیں, جتنی بھی ایلیمنٹس میں جتنی بھی چیزیں شامل ہیں, پرائمری ہیلتھ کیئر کے ایلیمنٹس میں جتنی بھی چیزیں شامل ہیں, وہ تمام پرائمری ہیلتھ کیئر کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے. یعنی ایک پرنسپل ہے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن, ہر چیز کو یعنی ایکویٹی کے اکارڈنگ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, چاہے وہ ہیلتھ سروسز ہو, ہیلتھ ایجوکیشن ہو, فوڈ ہو, واٹر ہو. اسی طرح سے اگزامپل دی گئی تھی کہ جس طرح سے سٹیز میں تقریباً 3/4 آف ہیلتھ بجٹ ہمارا استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ جو لوگ ہیں وہ تقریباً 3/4 لوگ رورل ایریاز میں رہتے ہیں. تو دیکھیں کہاں زیادہ ضرورت ہے, رورل ایریاز میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا ہیلتھ بجٹ جو ہے وہاں پہ اسپینڈ کریں. سو یہ ایکویٹی ڈسٹریبیوشن کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جہاں جتنی ضرورت ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہم سروسز پرووائڈ کریں. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ہیلتھ کیئر سروسز ہیں وہ جتنا دیر ہو سکے, گھر کے جتنا قریب پاسبل ہو سکے, ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنی پاپولیشن کو پرووائڈ کرنی ہے. اچھا جی, یہ بھی ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ ایکویٹی اور ایکوالٹی میں کیا فرق ہے. ساتھ میں نے آج آپ کو دوبارہ سے اس کو ڈیفائن بھی کر دیا. ایکویٹی مینس وہی کہ سب لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے, سروسز ٹو آل ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے جن لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے, جو لوگ زیادہ ولنریبل ہیں, انہیں زیادہ سروسز پرووائڈ کرنی ہے.
سچ ایز وائل کنٹینیوئنگ، یہ بھی آپ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے سے کہ جتنی بھی ایسینشیل ہیلتھ کیئر سروس ہے، ظاہر ہے ہر پاپولیشن کی الگ سوشل اسٹیٹس ہوتا ہے، ان کا الگ اکنامک اسٹیٹس ہوتا ہے، ان کی کلچرل پریفرنسز الگ الگ ہوتی ہیں، تو سب کو ان کی نیڈس کے اکارڈنگ ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہائی رسک گروپ بھی ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا بہت چھوٹے بچے ہو گئے، اولڈر ایڈلٹس ہو گئے، پریگننٹ لیڈیز ہو گئی، جو بھی ہائی رسک پر لوگ ہوں گے، ظاہر ہے انہیں تھوڑی زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایکویٹی کا مطلب یہی ہے اگر ان کو زیادہ ضرورت ہے تو ان کو پرائرٹائز کیا جائے گا، ان کو زیادہ ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کی جائیں گی. فار انشورنگ ایکویٹی، ہم نے ایکویٹی کو انشور کرنا ہے، وی کمیونٹی ہیلتھ نرس ہم لوگ رسپانسبل ہیں، ہم نے ایکویٹی کو انشور کرنا ہے. کیسے انشور کرنا ہے؟ فار انشورنگ ایکویٹی دا پاپولیشن ٹو بی سرو مسٹ بی نون. سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس پاپولیشن کو سرو کرنا ہے. دیکھیں بیٹا، جس طرح سے ہوم وزٹ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، سیم از دا کیس ود دا پرنسپلز آف پرائمری ہیلتھ کیئر، کہ اوبیسلی ہم نے جس پاپولیشن کو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرنی ہے، ہمیں سب سے پہلے اس پوری پاپولیشن کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا، اگر ہمیں اس کے بارے میں نالج ہوگا تو ہم یہ جان سکیں گے کہ اس کمیونٹی کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے، اکنامیکل اسٹیٹس کیا ہے، وہاں کس قسم کی کلچرل پریفرنسز کو پسند کیا جاتا ہے، کس قسم کی پریکٹسز کو پسند کیا جاتا ہے، اور ہم نے جو ہے اس چیز کو دیکھنا ہے ان ساری چیزوں کے اکارڈنگ. پلس ہمیں یہ پتہ لگے گا اس پاپولیشن میں کون سی ہیلتھ نیڈس ہیں جن کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے، کون سی ضروریات ہیں جن کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. تو جب ہمیں یہ سارا نالج ہوگا اس پاپولیشن کے بارے میں تو ہی ہم انہیں ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر سکیں گے نا. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، فار ایگزامپل ہم کسی ایک ڈیزیز کو لے کے جو ہے نا ان کے پاس چلے گئے، ان کو اس کے بارے میں ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ ڈیزیز وہاں پہ ہو ہی نہ، اور جس ڈیزیز کے بارے میں ہمیں ایجوکیشن دینی چاہیے اس کے بارے میں ہم نے انہیں کچھ بتایا نہیں، تو کیا ہم نے ان کی ضرورت کو پورا کیا؟ کیا ہم نے ایکویٹی کو انشور کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا. سو پاپولیشن کا پتہ ہونا، اس کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہم ایکویٹی کو انشور کر سکتے ہیں. دی ولنریبل گروپس آر ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ اینڈ ریچڈ. جتنے بھی ولنریبل گروپس ہوتے ہیں، یعنی لائک جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہائی رسک پہ جو گروپس ہوتے ہیں، جیسے پریگننٹ لیڈیز ہیں، اولڈر ایج میں ہیں، انفینٹس ہیں، ان کو آپ پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر لیں. اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہوگا بیٹا جی؟ اگر ہم نے پہلے سے انہیں آئیڈینٹیفائی کر لیا تو ہمارے لیے یہ ہیلپ فل ہو جائے گا. ہم دیکھ لیں گے، اچھا فار ایگزامپل پریگننٹ لیڈیز ہیں، ہمیں پتہ ہوگا کہ اچھا جی ہم نے ان کے لیے جو ہے لائک ان کو ہم نے جو بھی چیزیں پرووائڈ کرنی ہے، ہم نے ان کو جس طرح سے بھی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، ہمیں نیوٹریشن کے بارے میں ان کو گائیڈ دینی ہے، ان کے بچوں کے بارے میں ان کو گائیڈ کرنا ہے. تو جتنے بھی ولنریبل گروپس ہیں، فار ایگزامپل اگر اولڈر ایڈلٹس ہیں، ہمیں پتہ ہوگا اچھا جی اس گھر میں اولڈر ایڈلٹ ہیں، اس کمیونٹی میں اتنے اولڈر ایڈلٹس ہیں، دے آر مور پرون ٹو ڈفرنٹ انفیکشنز، دے آر مور پرون ٹو دا فالز، انجریز، تو ہم انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں. سو پاپولیشن کی کمپلیٹ نالج ہونا ضروری ہے، اور جو بھی ولنریبل گروپس اس کمیونٹی میں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی اگر ہمیں نالج ہوگا، ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے اور ان تک پہنچ سکیں گے اور انہیں ہم گائیڈ کر سکیں گے، تو ہی ہم ایکویٹی کو انشور کر سکتے ہیں، ورنہ ایکویٹی فلفل نہیں ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد دا ہیلتھ سروسز ناٹ نیسسریلی ہیلتھ سینٹرز ہیو ٹو بی ڈسپرسڈ انٹو the farthest remote rural areas, the deepest parts of the undeserved urban population. The failure to reach the needy and the majority is usually due to limited geographical access. جو ہیلتھ سروسز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف ہیلتھ سینٹرز کی ہی بات کریں، یعنی صرف اور صرف ہیلتھ سینٹرز کے ہی تھرو آپ، یعنی ہاسپٹلس کے ہی تھرو ہیلتھ سروسز دے سکتے ہیں، یا جو سروسز آپ ہاسپٹلس کے اندر دے رہے ہیں ہم انہی کو صرف ہیلتھ سروسز کہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو ہم ہیلتھ سروسز نہیں کہتے. جو ہیلتھ سروسز ہیں ان کو ڈسپرس کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہ جو رورل ایریاز ہوتے ہیں، یعنی
बहुत दूर दूर हमारे गांव होते हैं जहां हम नहीं पहुंच सकते, या हमारे हॉस्पिटल्स वहां मौजूद नहीं है, या हमारी हेल्थ सर्विसेज वहां मौजूद नहीं है। तो इतने दूर दूर जो रिमोट रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ तक हमारा ये फोकस होना चाहिए। हमारा ये एम है कि हम अब रिमोट जो दूर दूर तक फारदेस्ट रिमोट रूरल एरियाज है, हम वहाँ तक जाएं और उन्हें तमाम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसके अलावा ऐसी पॉपुलेशन जो मतलब अंडर डिजर्व्ड है, सिटीज़ में भी ऐसा होता है ना बेटा, सिटीज़ में भी कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन में भी कुछ ऐसे डीपेस्ट एरियाज़ होते हैं, डीपेस्ट पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं पहुँच रही होती। जब वहाँ इस तरह के एरियाज़ में भी हमें इंश्योर करना है कि हम हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड करें। द फेलियर टू रीच द नीडी एंड द मेजॉरिटी इज़ यूजुअली, और ऐसा होता क्यों है कि हम नीडी लोगों तक नहीं पहुंच पाते, हमें पता, हम जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक नहीं पहुंच पाते। मेजॉरिटी है, बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे जिन तक हम अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को नहीं पहुंचा पाते। उसका जो मेन रीज़न है बेटा, सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है, सबसे ज़्यादा मेन और बड़ा रीज़न उसका ये है कि जो जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं, यानी उन तक हमारा एक्सेस लिमिटेड होता है। जैसे अगर हम दूर दराज के गांव देहात की बात करें तो वहाँ हमें ट्रांसपोर्ट का इशू होता है, वहाँ हम जा नहीं सकते, या वहाँ के गांव देहात के लोग जो हैं वो शहरों तक नहीं आ सकते। मतलब बेसिकली जो जियोग्राफिकल एक्सेस है ना, उसकी लिमिटेशन इज़ द मेन थिंग कि जिसकी वजह से हम हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो डिज़र्व लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया है, कोई इशू तो नहीं है, कोई ऐसी बात जो ना समझ आ रही हो तो आप मुझसे साथ साथ पूछ लिया करें। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। Thus, to ensure equity, accessibility has to be improved by, देखें दो बातें हमने कर ली कि हमने इक्विटी को इंश्योर करना है, लेकिन हमने ये भी देखा कि इसकी एक्सेसिबिलिटी को भी इंश्योर करना है, यानी लोगों का भी एक्सेस हो हेल्थ सर्विस तक और हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने वालों का भी एक्सेस हो लोगों तक। इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स की तादाद बढ़ा दीजिए, क्लिनिक्स की तादाद बढ़ा दीजिए, रिसोर्सेज की तादाद बढ़ा दीजिए। जहाँ किसी गांव देहात में अगर हॉस्पिटल की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है तो वहाँ पे हॉस्पिटल की फ़ैसिलिटीज़ बना दीजिए। हम अपने नंबर ऑफ़ हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, हम उनको बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एक्सेसिबिलिटी मेन इस वक्त हमारे पास जो जियोग्राफिकल लोकेशन की लिमिटेशन है वो हमारे पास सबसे बड़ा दरमियान में हर्डल क्रिएट कर रहा है। जब हम उसे फुलफ़िल कर देंगे तो ऑब्वियसली हम इक्विटी को जो है वो इक्विटी जो है लोगों की नीड्स जो हैं उसे हम फुलफ़िल कर सकेंगे। दूसरा बेटा जो मैंने पहले बता दिया था, इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट कंडीशंस, ट्रांसपोर्ट ही नहीं है हमारे पास, रोड्स नहीं हैं, रोड्स हैं तो वो इतने टूटे-फूटे हैं कि लोग वहाँ जा नहीं सकते, जाना बस मतलब ज़ाहिर है डैमेज होता है गाड़ियों का एंड ऑल दैट। सो ट्रांसपोर्ट की कंडीशन को बेटर बनाएँ दोनों तरफ से। Organizing outreach services, that thus substituting one when the other is not available, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी आउटरीच सर्विसेज हैं उनको ऑर्गेनाइज कीजिए, सब्सटीट्यूट पैदा कीजिए। अगर फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल मौजूद नहीं है तो एटलीस्ट आप एक हेल्थ सर्विसेज छोटे छोटे से जो डिस्पेंसरीज हो गई या जो क्लिनिक्स हो गए, आप वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। और हॉस्पिटल है या क्लिनिक है उसमें डॉक्टर नहीं है, ठीक है, एक डॉक्टर नहीं है तो दूसरा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होना चाहिए, या एटलीस्ट डॉक्टर नहीं है तो वहाँ नर्सेज मौजूद हों। ठीक है, यानी सब्सटीट्यूट है कि किसी भी तरह से हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ के लिए एक्सेसिबिलिटी ज़रूरी है, हम चीज़ों को सर्विसेज को लोगों तक पहुँचाएंगे, उनकी एक्सेस में लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली हम उनकी इक्विटी, उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकेंगे।
बाद नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर एम्स। प्राइमरी हेल्थ केयर का मकसद क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर का मकसद है करेक्ट इम्बैलेंस इन एक्सेसिबिलिटी। सबसे पहली चीज़, ये जो इम्बैलेंस हुआ है, शहर के लोगों के पास बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, प्लस उनके पास ट्रांसपोर्ट मौजूद है, वो बड़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं हेल्थ सर्विसेज को। लेकिन गांव के लोगों के साथ बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसपोर्ट का इशू है, हेल्थ सर्विसेज उनके पास मौजूद नहीं है, उनके करीब क्लिनिक हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं है। चलें अगर करीब नहीं है, दूर मौजूद हैं, तो वो वहाँ तक भी उनका एक्सेस नहीं है ट्रांसपोर्ट की वजह से। सो ये जो इम्बैलेंस है, एक्सेसिबिलिटी का इम्बैलेंस है बेसिकली, इसको करेक्ट करना प्राइमरी हेल्थ केयर का मकसद है, उसका एम है। उसके बाद ब्रिंग हेल्थ सर्विसेज एज नियर टू पीपल्स होम एज पॉसिबल। दूसरा एम यही है कि हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम हेल्थ सर्विसेज को लोगों के घरों के जितना नज़दीक ले जा सकते हैं उतना नज़दीक लेके जाएं। हमारा पहला मकसद ये होना चाहिए। उसके बाद टू अचीव दिस प्राइमरी हेल्थ केयर इज सपोर्टेड बाय हाई लेवल ऑफ हेल्थ केयर टू विच पेशेंट्स कैन बी रिफर्ड फॉर एक्सटेंडेड केयर। अब इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए किस तरह से हम इन चीज़ों को अकम्प्लिश कर सकते हैं, इन गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए हमने एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एक्सेसिबिलिटी का इम्बैलेंस ख़त्म करने के लिए हमने ये किया कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसे एक दूसरे को, यानी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या हमारे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करें। यानी ये जो रेफ़र करने का एक कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर प्राइमरी हेल्थ केयर आप कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसकी प्रॉब्लम, उसकी जो इश्यूज़ है वो वहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो सकते, तो अपनी केयर को एक्सटेंड कीजिए, किसी दूसरे सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल के अंदर उस पेशेंट को रेफ़र कीजिए। और जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स वाले हैं, दे शुड बी वेलकमिंग, वो उनको अच्छे से वेलकम करें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम अपने जो जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के एम्स हैं, गोल्स हैं, उन्हें हम अचीव कर सकते हैं। ये अब सेकंड प्रिंसिपल की तरफ आ जाते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है बेटा जी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज इन प्रमोशन ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड वेलफेयर इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ पीएचसी। ये बात हम पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में या कम्युनिटी की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। यही बात प्राइमरी हेल्थ केयर में कही गई। डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने अलमाटा कॉन्फ्रेंस में ये बात डिस्कस की गई कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कम्युनिटी में मौजूद लोगों की, इंडिविजुअल्स की, उनकी फैमिलीज़ की, ओवरऑल कम्युनिटी की। इनफैक्ट अगर वो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को प्रमोट करना शुरू करेंगे। देखें पार्टिसिपेशन कैसे होगी, पार्टिसिपेशन इसी तरह होगी ना कि सबसे पहले हम अपनी हेल्थ को अच्छा करना शुरू करें, हम खुद से अपनी हेल्थ के लिए काम करना शुरू करें, हम अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, हम पानी बॉईल करके पिएं, हम धो धुला के साफ़ सुथरा करके सब्जियां इस्तेमाल करें, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को साफ़ रखें, हम वॉक करें, हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना इस चीज़ का ख्याल रखें। जब हम अपनी सेहत को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए काम करेंगे तो अल्टीमेटली हर शख्स जब इस लेवल पे काम करना शुरू करेगा तो वो कम्युनिटी की हेल्थ में ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब कम्युनिटी के लोग खुद से विलिंग होंगे तो ही आप उस कम्युनिटी में जा सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। इफ़ दे आर वेलकमिंग टूवर्ड्स यू, तो ही आप उन कम्युनिटीज़ में जाकर उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ जो भी आपने डिस्कशन करनी है उन्हें समझाना है। आप कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए मिलके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचें कम्युनिटी के लोग ही आपको एक्सेप्ट ना करें, आपकी बात ना सुने, आपके पास आकर ना बैठें, तो सोचिए किस तरह से आप कम्युनिटी की हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं। सो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन दोनों सेंस में बहुत ज़रूरी है। एक वर्डली पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोग हर चीज़ में आपके साथ विलिंगली काम भी करें और खुश भी हों, और दूसरी पार्टिसिपेशन इस सेंस में कि वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से काम करें। जब हर शख्स अपनी हेल्थ के लिए इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छे से काम करेगा तो ऑब्वियसली वो ओवरऑल कम्युनिटी की सेहत के अंदर जो है, अच्छी सेहत के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो प्राइमरी हेल्थ केयर ने कहा था कि जी ये जो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है।
देखिए कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे दिए हैं कि ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स एंड लेडी हेल्थ वर्कर्स इन पाकिस्तान, दे आर सेलेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी एंड ट्रेन्ड लोकली. By overcoming cultural and communication barriers, they provide primary health care in a way that are acceptable to the community. देखें जितने भी ये जो ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट होते हैं या लेडी हेल्थ विजिटर्स LHVs होती हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में ये लोग भी प्रॉपरली ये भी रजिस्टर्ड हैं. इनको चूँकि ये लोकली सेलेक्ट किए जाते हैं ना, तो ये लोकली सेलेक्ट भी किए जाते हैं और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है. तो ये उन हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं. देखिए ये उस वहीं के लोकल लोग होते हैं, तो ज़ाहिर है ये जानते हैं कि वहाँ किस किस्म का कल्चर है. अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के कल्चर को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं. तो वो वहाँ उन्हीं के कल्चर के अकॉर्डिंग उन्हें केयर प्रोवाइड करते हैं. इसी तरह से कम्युनिकेशन बैरियर्स बड़े आसानी से हम इनके थ्रू जो है ना उसे फुलफिल कर लेते हैं, उन गैप्स को, उन बैरियर्स को ख़त्म कर देते हैं. क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ सकता है. हम किसी कम्युनिटी में गए हैं, हम उन्हें कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी बात को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर. तो अगर वो हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे तो सोचें हमारा कुछ भी बोलना, कोई भी चीज़, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो प्राइमरी हेल्थ केयर में ये कहा गया कि अलमार्टा कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि अचीव करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर के गोल्स को, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि हम कम्युनिटी के लोगों को ही उसके अंदर शामिल करें और कम्युनिटी के लोग जो है बहुत अच्छे से हमारे शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम कर सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस को ओवरकम कर सकते हैं और कम्युनिकेशन बैरियर्स को ख़त्म कर सकते हैं. There must be a continuing effort to secure meaningful involvement of the community in planning, implementation, maintenance of health services, evaluation of health services. So, तो हम उर्दू, अच्छा मारिया ने कहा लाइक पश्तो पीपल हैं, तो हम उर्दू में या पंजाबी में समझें तो उनको जी एग्जैक्टली मारिया यू आर राइट, ऐसा ही है. अगर आप बिल्कुल एक कम्युनिटी है, पश्तो वहाँ लोगों को आती है और कोई ज़बान नहीं आती, आप वहाँ जाके बैठ जाएं, उनको उर्दू में कुछ भी बोलते रहें, मुझे बताएं आप 2 घंटे बैठ के बोलते रहें, उनको कोई फ़ायदा होगा आपका? ना उन्हें कुछ समझ आएगी, ना वो आप तक अपनी कोई बात पहुंचा सकेंगे. हाँ, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं. हो सकता है कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी के कोई आपको अगर फुलफ़िल करने के लिए मिल जाता है, लैंग्वेज बैरियर फुलफ़िल करने के लिए मिल जाता है, उसको उसको पश्तो लैंग्वेज भी आती है, उर्दू भी आती है, तो आपके लिए हेल्प आउट हो सकता है. इसके अलावा वहाँ की कम्युनिटी के जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो वहाँ काम करती हैं, वो आप उन्हें ट्रेन कर सकते हैं और वो आगे अपने जो लोग हैं उन्हें ट्रेन कर सकती हैं, उन्हें बता सकती हैं, कम्युनिटी के लोगों को बता सकती हैं. तो दोनों तरह से हमें हेल्प आउट हो सकता है. अच्छा, देखें ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी कम्युनिटी है उसकी कंटिन्यू कोशिशों की, एफ़र्ट्स की ज़रूरत होती है, तभी हम सही मायनों में जो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन है उसे इंश्योर करवा सकते हैं. अब ये भी जानना ज़रूरी है जो हमारी कम्युनिटी है उसकी पार्टिसिपेशन एक कंटिन्यूस एफ़र्ट है. ये नहीं है कि किसी एक स्टेज में हमारी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी और उनकी भी ड्यूटी पूरी हो जाएगी और हम कहेंगे जी हमने तो जी प्राइमरी हेल्थ केयर अचीव कर ली, प्रोवाइड कर दी है लोगों को, हमने तो जी हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000 का जो स्लोगन था वो हमने फुलफ़िल कर लिया. ऐसा नहीं है. वो कहते हैं कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन हर स्टेज पे ज़रूरी है. आप प्लान बना रहे हैं उस टाइम भी ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त भी ज़रूरी है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज के लिए भी ज़रूरी है, एवेल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के लिए भी ज़रूरी है. यानी फॉर एग्जांपल आप एक कम्युनिटी में गए, आपने प्लानिंग स्टार्ट की, आपने डाटा कलेक्ट किया, आपने देखा कि यहाँ पे तो जी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लोगों को फ्लू लग रहा है और इस तरह की चीज़ें, आपने उस पर प्लानिंग करना शुरू की, आपने सारा डाटा कलेक्ट किया. आपको कम्युनिटी के लोगों की ज़रूरत होगी ना, उनकी पार्टिसिपेशन के बगैर आप डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते. सो फर्स्ट स्टेज इज़ प्लानिंग. फिर आपने ये सोचना शुरू किया, अच्छा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं. आपने जाके उनके घरों का विज़िट किया कि वहाँ वेंटिलेशन है या नहीं है. ये भी कैसे पॉसिबल हुआ. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो वो आपको अपने घरों में नहीं आने देंगे. लोग हैंड वॉश करते हैं या नहीं करते, स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, टिश्यू यूज़ करते हैं, रुमाल यूज़ करते हैं या क्या है, और उसके बाद हैंड वॉश करते हैं या नहीं. तो ये सारी चीज़ें फिर आपने
इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से ही। फिर उसके बाद आपने उस पर पूरा एक प्लान बनाना शुरू किया। प्लान क्या बनाना शुरू किया? आपने कहा जी अब मैंने लोगों को एजुकेट करना है कि आपने स्नीजिंग किस तरह से करनी है, कफिंग कैसे करनी है, हैंड वॉशिंग करनी है, खाना खाने से पहले हैंड वॉशिंग, पानी कुछ भी पीने से पहले हैंड वॉशिंग, ये सब आपका प्लानिंग का हिस्सा है। प्लस आपने कहा जी हमें डिस्पेंसरी बनाएंगे, उसमें एक डॉक्टर हुआ करेगा, एक नर्स हुआ करेगी, पेशेंट्स आएंगे उनको डील करने के लिए ये मेडिकेशन हुआ करेंगी। ये सब प्लानिंग थी, इसमें कम्युनिटी ने आपके साथ पार्टिसिपेट किया। फिर इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ आ गया। अगर कम्युनिटी के लोग ही, आप एजुकेट करना शुरू हुए, आपने जाके एजुकेशन देना शुरू की, कम्युनिटी के लोग ही ना पार्टिसिपेट करें, आपको ना सुने, तो आपका एजुकेशन का जो प्लान है क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह से हेल्थ सर्विसेज हैं, आप हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर लोग डिस्पेंसरी में आके आपसे मेडिसिन ही लेना पसंद ना करें, वो क्या जी हम तो बस हकीमों से दवाइयाँ लेते हैं और हम उन्हीं से दवाइयाँ लेंगे, हम आपके पास आके कोई सर्विसेज नहीं लेना चाहते, तो कहाँ की इम्प्लीमेंटेशन? मुझे बताएं। आप कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के बगैर अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद बेटा जी मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज में भी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, हर तरह से। जितनी भी, अगर आपने कोई डिस्पेंसरी इस तरह की सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं, तो उनको मेंटेन रखना किसका काम है? कम्युनिटी के लोगों ने ही उसे यूज़ करना है ना। एक डॉक्टर या एक नर्स तो नहीं है। फॉर एग्जांपल लोग आए, आके चीज़ों में तोड़ फोड़ किया करें, चीज़ों को नुकसान पहुंचाया करें, तो आप बताएं कैसे हम हेल्थ सर्विसेज को मेंटेन रख सकते हैं? प्लस थोड़ी बहुत फंडिंग हो सकती है, फंडिंग की ज़रूरत हो सकती है, चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है तो वो डैमेज होती हैं, तो ज़ाहिर है उनकी मेंटेनेंस के लिए भी तो कम्युनिटी का अपना इंटरेस्ट होना चाहिए ना। कम्युनिटी के लोग आएँ, बहुत तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करें, ख़राब ना करें, तो मेंटेनेंस भी हेल्थ सर्विसेज की तभी पॉसिबल है जब कम्युनिटी आपके साथ पार्टिसिपेट करे। अपनी इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कौन बताएगा आपको? 2 लोग बताएंगे। एक कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी के लोगों से आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, वो आपको जवाब देंगे कि जी हाँ हम बेहतर हो रहे हैं, हम पहले अगर इतना फ्रीक्वेंट बीमार होते थे, अब हमारे बच्चे, या बच्चे फ्रीक्वेंट बीमार होते थे, अब हम बीमार नहीं होते, हमारे बच्चे बीमार नहीं होते। दिस इज़ इवैल्यूएशन। आपको पता लग रहा है आपकी हेल्थ सर्विसेज कितना काम कर रही है, आपकी हेल्थ एजुकेशन कितना काम कर रही है, लोग कितना आपकी हेल्थ एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं। कम्युनिटी के लोग आपके साथ पार्टिसिपेट ना करें, आपको जवाब ना दें, आपको कैसे पता लगेगा आपकी हेल्थ सर्विसेज कहाँ जा रही हैं, आपकी हेल्थ एजुकेशन का कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारे पास डाटा है, लोग, कितने लोग पहले जब हमने स्टार्ट की डिस्पेंसरी, कितने नंबर ऑफ पीपल डिस्पेंसरी में आ रहे थे, किस किस डिजीज़ के साथ आ रहे थे, और फिर जब हमने जब हमने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसको एवेलुएट करना शुरू किया, तो कितने लोग अब हमारी डिस्पेंसरी में आते हैं और कितने लोग बीमार होते हैं। तो हर तरह से, यानी बताने का ये मकसद है कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपका प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, ओके। अभी अटेंडेंस का टाइम हो गया, 45 मिनट्स हो गए। सो तमाम स्टूडेंट जो हैं वो अटेंडेंस मार्क करवा लें बेटा जी अब रोल नंबर के साथ। ठीक है जी।
اچھا، تھوڑا سا اور کنٹینیو کر لیتے ہیں، 4-5 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ جو میکسیمم ریلائنس ہے پرائمری ہیلتھ کیئر یہ کہتی ہے کہ میکسیمم ریلائنس آن لوکل ریسورسز سچ ایز، کہ جب ہم پرائمری ہیلتھ کیئر میں بار بار کمیونٹی پارٹیسپیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میکسیمم ہمیں ریلائی کرنا چاہیے اپنے لوکل ریسورسز کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم جس کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اسی کمیونٹی کے لوکل ریسورسز کے اوپر ہم نے زیادہ سے زیادہ ریلائنس کرنا ہے، جیسے مین پاور ہے، منی ہے اور مٹیریل ہے۔ یعنی اگر جو مین پاور ہے، یعنی جو بھی ہم نے لوگ، جیسے بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ کمیونٹی کے ہی لوگ ہوں گے تو وہ کلچرل پریفرنسز کو سمجھیں گے، کلچرل ڈفرینسز کو سمجھیں گے، ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو جیسے نرسز ہوگی، ڈاکٹرز ہوگی، کوشش کرنا ہے کہ وہاں کی مین پاور کو ہی ہم یوٹیلائز کریں ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ منی، جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا، ٹھیک ہے گورنمنٹ فنڈز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے، جتنا اس کمیونٹی کے لوگوں سے ہو سکے وہ فنڈز کریں، تاکہ ہم اور پلس ان کے فنڈ، اور پلس ظاہر ہے ہم جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے، پھر پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہیں، پھر وہ ایک بالکل ان کے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو فنڈز دیے جاتے ہیں اس اسپیسیفک کمیونٹی کے لیے، اس ایریا کے لیے، اس منی کو ہم استعمال کریں۔ اور مٹیریلز وہی ہے کہ جس قسم کے جو ہیلتھ سروسز کے اکوپمنٹ ہیں جو وہاں الاٹ کیے گئے ہیں ہم انہیں استعمال کریں، یعنی جو ہمارے لوکل ریسورسز ہیں انہیں ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ان کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ ریلائنس کریں۔ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم اسے کنٹینیو کریں گے۔ کوئی کوئری ہے کسی اسٹوڈنٹ کی تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے۔ اوکے بیٹا جی، کوئی کوشچن نہیں ہے آپ لوگوں کا تو انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ٹیک کیئر بیٹا، اللہ حافظ۔